Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 13 and I am Asif Munir teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture. We discussed group by clause in detail and we discussed what are groups and how groups are made basically in databases or tables using group by clause. Then we learned how to restrict certain groups and we applied restrictions on groups using having clause. Then we discussed subqueries and we said that until unless we require data from one table, we can use subqueries. And finally we discussed multi-table queries. When we require to get data from multiple tables, then we need to get that data from multiple tables, and we saw how basically joins are applied on multiple tables. We would start from the place where we left, and we were talking about join, and we were having some examples of join and multi-table queries. Let's start with today's lecture. Again, just have a look at the dream home case study and the relations involved in this sample database upon which we are basically applying all the queries. The understanding of this database will help you a lot when we are basically working with these examples. Branch table, staff table, property for rent, client, private owner, viewing. You should be quite clear about each table and the attributes that are involved in these tables, and which attributes are being repeated, the primary key and foreign key, and the relationship among those relations or tables. Again, it's instance of the dream home database. You should be very clear again about the instance of the dream home database. There are 5 tuples in branch. You should be concentrating on those rows or the data that is basically present in this in these tables. We have staff table with 6 rows and property for rent, client, and the other tables. So a better understanding of this case study or this area will help you a lot to understand all the examples of SQL commands. Let's start with the another example of join. In our last lecture, the last query that we discussed, I hope you still remember, we were asked that for each branch list staff who manage properties and properties they manage. So we were asked how many properties are managed basically by which staff members. So we needed to display the details of those staff members who are managing certain properties. In this example, there has been an addition. For each branch, list staff who manage properties including city in which branch is located. So this is the addition that has been made in the if you compare this example with the previous one, and the properties they manage. Otherwise these both examples are same. So if we concentrate on the query is, again, we need to list the details of the staff members who are managing properties, and what kind of properties, and we need to also display the city of the branch in which those staff members are working. So if we closely observe this query, then we will be able to understand that there are different tables that are involved in basically this query. We need to extract data from the branch table.
Why branch table? Because the city of the branch that is available only in branch table. So we need to access that table. We need to know about the staff members. So the staff information is available in staff table. We need to establish a relationship between the properties and the staff members. So that properties information is available in property for rent, and which properties are assigned to which staff members, that information will be retrieved from the property for rent. So this is a three-table multi-table query. So there are three tables involved, and we need to establish the join condition among these three tables. So there will be two join conditions. If there are suppose three tables, then there must be two different conditions that will establish the relationship between two tables. So let's have a look at the query. Select b.branch number. Again, we have used alias for different tables. For branch table, we have used alias b. For we have used s alias for staff table, and p for property for rent. So b.branch number, it means that we will be showing the branch numbers from branch table. b.city, again from the city attribute, will be taking the values from branch table. s.staff number, staff numbers will be coming from the staff table. f name, last name. So there is no confusion, because first name and last name is not basically included in the other table, so it will come from staff. Property number is again not ambiguous. Why basically we use alias? Because we need to avoid the ambiguity. If there are some columns or attributes that are present in two tables, then the DBMS will be confused that from which table or relation you want to access that particular attribute or column. So you need to identify that from which relation or table you will be accessing that particular column. So that's why we are using these alias here. Okay, that is the all information that we need to display in our result. Then we have from clause, and we have three tables. We have branch, we have staff, and we have property for rent. Now after this from clause, we need to specify the join condition. So there is a basically a common attribute between staff and branch table. So branch number attribute is in branch table and staff number table. So we can specify this relationship in join condition, where b.branch number and equals to s.branch number. So this is the relationship that exists between the branch and the staff table. But we need to have another condition that was basically specified in the other query, or in the other statement, that we need to include the city. So that is established with this command, or you can say the sub portion or join condition, that b.branch number equals to s.branch number, and upon this join condition we can extract the information of the city for a particular branch. And now we need to specify that which staff members handle what kind of properties. So again there is and a logical operator, and we specify s.staff number is equal to p.staff number. So the staff number value should be equal or same in both the attributes from staff and property for rent information, if we need to know that which staff members are handling which properties. Then finally we are basically sorting the result of this table with the help of order by clause, and there is a major key, sort key, that is branch number, and we have minor keys, staff number and property number, upon which the result will be sorted respectively. So
this is how basically we can write a multi-table query. In our previous example, we saw that how we can write a query that involves 2 tables, and this is an example in which we learned how to write a query that takes its data from 3 tables, and so on. You can write a query that could extract information from more than 3 tables, 4 tables, 5 tables, but you need to add more join conditions when you are dealing with more tables. Let's have a look at the result. So this is the result. The branch number, it's basically extracted from branch table. City is again from branch table. Staff number is extracted from staff table. First name, last name, staff, and property number is extracted from property for rent. So this is the summary or the result of the query, and we are looking at the information that which properties are handled by which staff member and which basically branch number they belong to, and this branch is located in the cities, the respective cities that they are located in. We could also be asked that suppose let's have another example that we are asked find number of properties handled by each staff member. So if we closely observe this query, we have been asked find number of properties. So number means you need to have an aggregate function, and that would be count, handled by each staff member. So each means you need to group upon the staff. So you need to group both on branch and staff. So if we look at the query, select s dot branch number comma s dot staff number. Okay, so first of all we grouped on the basis of branch, and it is quite possible that a staff member can handle more than one properties. So that's why we are looking at the properties that are managed by certain staff member, but that staff member will be working in a specific branch. Therefore we included both these attributes or columns. Then we are using an aggregate function count to count the properties that they manage as my count from staff S. And definitely it involves 2 tables. We need to extract information from the staff table, and we need to extract information from property for rent table, where s dot staff number equals to p dot staff number. This is the join condition that exists or that should be used to specify the relationship between these 2 tables. So as I told you in my previous lecture, that there always exists a one-to-many relationship when you are using join, a parent-child relationship, and the parent table is staff and the child relation is property for rent. So staff number is the primary key in the parent relation, and it is acting as a foreign key in the child relationship. And for one staff there could be many properties that are managed by that particular staff. So there exists a one-to-many relationship between these 2 relations, and that is the most common relationship that you will come across, and it will be most frequent one. Then you need to group by, as I discussed, because the query requires that we should be grouping the information on the basis of the branch and the staff basis. So we included both the non-aggregated function attributes in the group by clause. So again, group by can contain multiple attributes that are included in the select list. So group by s dot branch number comma s dot staff number, and finally we are sorting the result on the major sort key, that is branch number, and then the minor sort key staff number. So this query will produce a result that will basically group the
on the basis of branch first, and then for each staff member in that particular branch and the number of properties that are handled by that particular staff member, and we will be sorting the result on the basis of branch number and staff number. So if we look at the example, so we have branch B003, again B003, because the grouping is not just only on branch, but it's on the combination branch plus staff number, right? So in branch B003 there are two employees, SG14 staff members, SG37. So SG14 is handling only just one property, therefore the count is 1, because there is only one entry in the property rent for staff number SG14, and for SG37 there are two properties that are managed by SG37. In B005 branch there is only one employee that is managing certain properties, and it's only one. Again for B007 we have only one employee that is managing only one property for rent. So that's how the result is calculated for this particular query. As I discussed in the relational algebra chapter, that join is a derived form of Cartesian product, and Cartesian product is one of the major operation that is involved in relational algebra. So a join is a subset of a more general combination of two tables known as Cartesian product. So Cartesian product, if you remember my lecture on the relational algebra, we talked the Cartesian product of two tables is that each row of the first table is combined with each row of the second table. So if we talk about the cardinality and degree of the Cartesian product relation, again you should remember that we talked about relational model that each operand is a relation, and the result of each operation on those relation is again a relation. We discussed that in very detail. So what about the degree and cardinality of the resultant relation? So when we perform Cartesian product on two relations, then keep in mind the cardinality of the Cartesian product will be the sum of not sum. If we have suppose m rows in first table and n rows in the second table, then the cardinality of that relation will be, after the Cartesian product, m multiplied by n. I think you still remember the lecture that I gave about relational algebra, कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो relational algebra के अंदर Cartesian product हमने डिस्कस किया था कि Cartesian product में क्या होता है कि हर रो का जो कम्बिनेशन है वो दूसरे टेबल की हर रो के साथ होता है. तो इट मीन्स कि अगर पहले हमारे टेबल के अंदर 4 रोज हैं और दूसरे में 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो कार्डिनैलिटी होगी, मीन्स या नंबर ऑफ रोज जो उसके अंदर होंगी वो 20 होंगी. तो जो डिग्री होगी, डिग्री अगेन जो है वो सम होगा दोनों की डिग्री का, कि अगर पहले में 3 एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरे में भी 3 तो 6 डिग्री होगी. तो अगर 4 हैं और दूसरे में 3 हैं तो वो 7 हो जाएगी, एंड सो ऑन. Keep in mind there is a special form provided in the ISO standard for the Cartesian product as well, कि अगर आप Cartesian product निकालना चाहें दो टेबल्स का तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं. लेकिन मतलब ये बहुत रेयर है कि आपको Cartesian product की ज़रूरत पड़े. लेकिन Cartesian product को थोड़ा सा इधर भी डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि जी जॉइन बेसिकली वो कैसे काम करता है. तो अगर हम इसका देखें Cartesian product का जो फॉर्मेट है कि कैसे उसका क्यूरी कोई लिखी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि Cartesian product हमेशा दो टेबल्स के ऊपर होगा. और जो इसका अगेन सेलेक्ट के अंदर हम कैसे इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट और ऑल. आपको पता है कि डिस्टिंक्ट और ऑल हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. डिस्टिंक्ट मीन कि हम डुप्लीकेट रोज नहीं चाह रहे, और ऑल
मीन्स कि हम सारी देखना चाह रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेशन समेत। फिर आगे और ये ऑप्शनल है, हमने डिस्कस किया था। फिर हम करली ब्रेसेस के अंदर देखते हैं कि हमें या स्टैरिक देना है या कॉलम लिस्ट देनी है, कि हमने कौन कौन से कॉलम्स दिखाने, मतलब वो सारे दिखाने हैं, हम मतलब उस रिजल्ट में से भी सारे भी दिखा सकते हैं, कुछ नहीं भी दिखा सकते। फ्रॉम टेबल 1, और जो कीवर्ड है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है वो क्रॉस जॉइन का कीवर्ड है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आपने परफॉर्म करना होगा तो यू विल यूज दीज कीवर्ड कि जी क्रॉस जॉइन आपने यूज़ करना है और उसके बाद दूसरे टेबल का नाम आएगा। तो मतलब इट्स वेरी इजी कि जी आप कैसे जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को एसक्यूएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हैं कि जो जॉइन है, जैसे हमने कहा कि जॉइन इज़ अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कुछ जो है सर्टन हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं या कुछ एक मतलब स्पेशल उसकी फॉर्म हो या उसका सबसेट हो, तो वही हमारा जॉइन होता है। तो फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल्स नेम्ड इन द फ्रॉम क्लास, कि पहले आप ऐसा स्पेसिफाई कर लो कि पहले आप सिंपली जिनके ऊपर जॉइन लगाना है ना, तो आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, अब इफ देयर इज अ वेयर क्लॉज अप्लाई द सर्च कंडीशन टू ईच रो ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आप क्या करो कि अब आप वो कंडीशन जो वेयर क्लॉज में मौजूद है उसको अप्लाई करो हर रो के ऊपर, और जो उस कंडीशन को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, वो वाली रोज शामिल कर लो, बाकी सारी रोज आप निकाल दो। दोज रोज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ईच रिमेनिंग रो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन द सिलेक्ट लिस्ट। तो जो अब रोज आपकी सिलेक्ट हो गई हैं, जो सेटिस्फाई कर रही हैं वेयर के अंदर कंडीशन को, अब उनमें से सिर्फ वो वाले एट्रीब्यूट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो जो आपने सिलेक्ट में स्पेसिफाई किए हो। तो हो सकता है आपने सारे सिलेक्ट में स्पेसिफाई किए हो सकता है आपने कुछ स्पेसिफिक किए हो। तो मतलब आप जॉइन का जो रिजल्ट है वो फिर इस तरह कैलकुलेट होता है। तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा, फिर जो आप रिजल्ट में जो एट्रीब्यूट्स दिखाएंगे, तो वो फाइनली आपके जॉइन का रिजल्ट होगा। तो मतलब ये जस्ट लॉजिकली आपको बताना था कि कैसे जॉइन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और कैसे जो है आपका जॉइन जो है वो कंप्यूट होता है विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट, या उसमें से कैसे वो डिराइव होता है। अब सिलेक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट दिया हुआ होगा तो फिर उसका बड़ा क्लियर मीनिंग है कि अगर कोई डुप्लीकेट रोज हैं तो वो फिर नहीं दिखाएगा, ठीक है। और अगर ऑर्डर बाय क्लॉज स्पेसिफाई किया गया है तो वो फिर सॉर्टिंग जो है उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी। तो रोज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है अपॉन द सॉर्ट कीज, जो भी आपकी मेजर सॉर्ट की होंगी या माइनर सॉर्ट की होंगी, उसकी बेस के ऊपर फिर आपका रिजल्ट भी सॉर्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली योर जॉइन इज कंप्यूटेड एंड यू कुड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन, के कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन के जो है आपस में रिलेशनशिप है, या कैसे उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है एक्चुअली जॉइन। अभी तक हमने सिंपल जॉइन को जो है वो स्टडी किया, और उस जॉइन के अंदर हमने ये देखा कि जॉइन के लिए पहली बात तो यह है कि हम मल्टीपल टेबल्स के ऊपर जॉइन लगाते हैं, और जॉइन के लिए फिर हमने देखा कि हमारे पास कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसको दोनों वैल्यूज जब सेम होंगी तो तब वो वाली रो सेलेक्ट होती हैं, और वो फिर करस्पॉन्डिंग जो है आपकी रिजल्टेंट रो आपके रिजल्ट के टेबल में जो है वो शामिल होती है। लेकिन समटाइम्स इट इज नेसेसरी कि जी वी नीड टू इंक्लूड अनमैच्ड रोज एज वेल, कि मतलब उसमें तो हमने देखा कि जब मैचिंग होगी, मसलन जैसे हमने देखा था कि जहां पे अगर हम स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट इन दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो स्टाफ नंबर की वैल्यू स्टाफ के टेबल में भी बराबर हो, और वही वाला स्टाफ नंबर अगर प्रॉपर्टी फॉर रेंट की रो में भी आ रहा है तो तब उनका वो उस रो को हम जो है वो जॉइन की मदद से हम लिख सकते थे, अदरवाइज हम वो नहीं लिख सकते थे। तो लेकिन सपोज हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी रोज भी शामिल कर रहे हैं जिनकी मैचिंग वैल्यूज नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल जॉइन की टाइप है जिसको हम शामिल कर सकते हैं, एंड दैट इज आउटर जॉइन। और आउटर जॉइन हम देखेंगे कि आउटर जॉइन में बाज़ औक़ात ऐसी रोज भी आती हैं जो जिनकी शायद मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये बाज़ औक़ात बड़ी रिक्वायरमेंट है मतलब इस चीज़ की कि आपको आउटर जॉइन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम देखते हैं कि आउटर जॉइन जो है वो
क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और किन किन सिचुएशंस में ये यूज़ हो सकता है, और इसी तरह उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा जी कि हमारे पास जो जॉइन कंडीशन में जो मैचिंग वैल्यूज़ थी उसके ऊपर हमारे पास डाटा आ रहा था, लेकिन अगर कोई अनमैच्ड वैल्यू है, मतलब एक स्टाफ मेंबर ऐसा है जिसकी कोई मतलब रो एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉपर्टी फॉर रेंट में, तो उसको भी हम डाटा दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर तो हमारा जॉइन जो है वो काम नहीं करेगा। तो आउटर जॉइन जो है provides us the facility कि we can include those rows as well कि जी जिनकी मैचिंग वैल्यूज वहाँ पे दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब मैचिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मसलन फर्ज करें कि स्टाफ के अंदर एक रो पड़ी हुई है, मसलन स्टाफ मेंबर एक है, उसका नाम XYZ है एंड सो ऑन, और प्रॉपर्टी फॉर रेंट में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी, ठीक है, मतलब वो कोई भी प्रॉपर्टी हैंडल नहीं कर रहा, और हम चाहते हैं कि हम तमाम स्टाफ की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। मसलन देखें, एक समरी रिपोर्ट आपसे मांगी जा रही है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप तमाम स्टाफ का डाटा शो करें, जिन प्रॉपर्टीज़ को वो मैनेज कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी डाटा शो करें। तो फर्ज करें हमने कॉलम तो सिलेक्ट किए होंगे स्टाफ के टेबल में से भी, कि हमने कहा जी स्टाफ नंबर दिखाओ, फर्स्ट नेम दिखाओ, लास्ट नेम दिखाओ, स्टाफ की तमाम इंफॉर्मेशन दिखाओ, फिर प्रॉपर्टीज़ जिनको वो मैनेज कर रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैचिंग ही कोई नहीं है, मैचिंग नहीं होने से मुराद कि एक स्टाफ जो है किसी प्रॉपर्टी को मैनेज ही नहीं कर रहा, तो फिर जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो प्रॉपर्टी नंबर है एंड बाकी चीज़ें हैं, तो वो क्या आएगा। तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि आउटर जॉइन जो है वहाँ पे वो क्या अप्लाई करता है, वहाँ पे नल जो है वो अपनी तरफ से वो लगा देता है। अगर कोई अनमैच्ड रोज आएंगी तो उनके लिए वो नल उन फील्ड्स में दे देगा, क्योंकि वो तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन स्टिल हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसे लोग हैं जो कोई भी प्रॉपर्टीज मैनेज नहीं कर रहे। तो इस किस्म की सिचुएशन में जॉइन जो है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। अच्छा, अगर आउटर जॉइन को हम डिस्कस करें तो पहले थोड़ा सा इन टेबल्स को देख लें, जो कि अगेन डिराइव्ड हैं ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट से, और हमने सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए इनको ब्रांच 1 और प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1 हमने इनको कह दिया, इनका नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। और ब्रांच नंबर के जो ब्रांच 1 है उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रांच नंबर है और बी सिटी है, और हमारे पास B003, B004, B002 ये 3 ब्रांचेस हैं। सिटी इनके ग्लासगो, ब्रिस्टल एंड लंदन है। इसी तरह प्रॉपर्टी फॉर रेंट में PA14, PL94, PG4, आबरडीन, लंदन एंड ग्लासगो इनके सिटीज़ हैं इन प्रॉपर्टीज़ के। वो जो सिटीज़ हैं वो ब्रांच के हैं कि वो ब्रांच का कौन सा सिटी है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ के सिटी हैं। तो मतलब ब्रांच और प्रॉपर्टीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इन टेबल्स के अंदर रख ली है। अब इनके ऊपर हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो आउटर जॉइन लगा के कुछ स्पेसिफिक जो है वो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों के ऊपर अगर जॉइन लगाया जाए, ठीक है, इन दोनों के ऊपर अगर जॉइन लगाया जाए, इनर जॉइन या सिंपल आप जॉइन जिसको कहते हैं, तो फिर क्या होगा। अब वो देखें कि कैसे लगाया जा सकता है। सेलेक्ट बी डॉट स्टैरिक। अब बी देखें किसको हम कह रहे हैं, ब्रांच 1 को बी कह रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम के अंदर देखें ब्रांच 1 है और बी उसका एलियस है। अब बी डॉट स्टैरिक क्या रिप्रेजेंट करता है कि बी के तमाम एट्रीब्यूट्स दिखाओ। अच्छा, ये भी एक आसान तरीका है, बजाय आप हर एक एट्रीब्यूट लिखें, आप अगर किसी भी कॉलम के सारे किसी भी टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स दिखाना चाह रहे हैं, कॉलम्स दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है सेलेक्ट के अंदर स्टैरिक लिखते हैं। तो चूंकि अब 2 टेबल्स हैं तो बी डॉट स्टैरिक हमने कह दिया, ठीक है, कॉमा। इसी तरह पी डॉट स्टैरिक फॉर प्रॉपर्टी फॉर रेंट फॉर 1 का, और उसका हम तमाम एट्रीब्यूट्स रिजल्टेंट टेबल में देखेंगे, तो इट मीन्स 4 उसकी डिग्री हो जाएगी। 2 एट्रीब्यूट्स पहले टेबल के थे, 2 दूसरे के, तो 4 टोटल हो जाएंगे। अच्छा, जब वेयर कंडीशन है, चूंकि ये जॉइन है, तो जॉइन हमेशा किस पे होता है, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर होता है, और कॉमन एट्रीब्यूट आपको पता है दोनों का सिटी है, और बी डॉट सिटी इक्वल्स टू पी डॉट सिटी। अब अगर मैं इसका रिजल्ट पहले दिखाने से पहले आपको जरा मैं बता दूं कि देखिए कैसे रो सिलेक्ट होंगी। आप जरा पिछली स्लाइड पे मैं आपको ले जाता हूं। अब देखें हर एक रो जो है बेसिकली आप देखें वो कंपेयर होगी। देखें B003 ग्लासगो, ठीक है, इस रो को हमने कंपेयर करना शुरू करना है सारे दूसरे टेबल की रोज के साथ, ठीक है। जैसे हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है हर रो का दूसरी रो के साथ, लेकिन फिर वो वेयर भी है, तो वेयर को भी ज़हन में रखना है। हमने देखा जी B003 का सिटी ग्लासगो है, तो कंडीशन क्या है कि जिस रो का बी डॉट सिटी इक्वल्स टू पी डॉट सिटी होगा वो हमने एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। तो आप देखें ग्लासगो
इधर जो आ रहा है प्रॉपर्टी फॉर रेंट में वो सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर PG4 के अगेंस्ट आ रहा है। तो इट मींस कि जो पहली रो सेलेक्ट होगी वो क्या होगी, B003 बी सिटी ग्लासको, और उधर से PG4 ग्लासको, सिर्फ इसके साथ इसका मैच होता है वो इक्वलिटी का, ठीक है। तो ये वाली रो सेलेक्ट होती है। अच्छा, ये खत्म हो गया हमारा। अब B004 देखें, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में कोई भी नहीं है तो इसलिए इसकी मैचिंग नहीं होगी, ये रो सेलेक्ट नहीं होगी। B002 लंदन है तो उधर जो उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, PL94, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी जो सिटी है वो लंदन है। तो ये दो रोज जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आप अगर उसका रिजल्ट देखें तो आप देखेंगे कि ये दो रोज जो है वो आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। आई होप जॉइन अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल जो है वो जॉइन की कर रही हैं, लेकिन अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो जॉइन की एक स्पेशल टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वो है आउटर जॉइन। तो मतलब आउटर जॉइन को समझने से पहले हमें एक हमारा छोटा सा सिनेरियो आपको समझना ज़रूरी था, ताकि अब जो हमारा आउटर जॉइन होगा वो इनके ऊपर लगेगा, इन टेबल्स के ऊपर, तो इसलिए हमें जो है वो क्लियर है। अब ये देखें कि इस रिजल्ट को अगर गौर से देखें तो इसमें कौन सी वैल्यूज आई हैं जहां पे दोनों के सिटीज की मैचिंग है, इक्वल है वैल्यू। मसलन बी सिटी में भी ग्लासको है और पी सिटी में भी ग्लासको है, बी सिटी में भी लंदन है और पी सिटी के अंदर भी लंदन है। तो मतलब जब जॉइन हम लगाते हैं तो जॉइन में तो सिर्फ वही वैल्यूज आती हैं जहां पे दोनों के उन कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यूज सेम आती हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सपोज ऐसी रोज भी आए जिनकी मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो हम ब्रांचेस ऐसी देखना चाह सकते हैं जिनकी बेशक मैचिंग नहीं है, वो हमें दिखा दो। मतलब हम ब्रांच ऐसी देखना चाह रहे हैं जो एक सिटी में है लेकिन बेशक प्रॉपर्टी फॉर रेंट उस सिटी में नहीं है, तो बेशक हम उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन हम स्टिल अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम आउटर जॉइन लगाएंगे, ठीक है जी। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम कुछ थोड़ा सा आउटर जॉइन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जी रिजल्ट टेबल हैज 2 rows वेयर सिटीज आर सेम। मैंने आपको बता दिया देयर आर नो रोज करस्पॉन्डिंग टू ब्रांचेस इन ब्रिस्टल एंड अबरडीन। तो मतलब हमने देखा कि इन दोनों के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, रो नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि ना ब्रिस्टल की मैचिंग दूसरे में है ना अबरडीन की मैचिंग है, तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया। तो अब अगर आप इन अनमैच्ड रोज को भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिजल्ट में, तो यू कैन ऑलवेज यूज आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन वही वाले जो रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ के आए थे, और ये कीप इन माइंड कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रिलेशनल अलजेब्रा में याद है एग्जैक्टली वही काम इधर भी, मतलब ऑपरेशन तो वही है, सिर्फ अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में इसको देखेंगे, और वही क्यूरी भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन, जो लेफ्ट वाला टेबल होता है उसकी तमाम रोज दिखाता है, बेशक उनकी मैचिंग हो या ना हो। राइट आउटर जॉइन राइट वाले टेबल की तमाम रोज दिखाएगा चाहे उनकी मैचिंग ना हो, और जो फुल आउटर जॉइन है वो दोनों की अनमैच्ड रोज को दिखाएगा। आई होप कि आपको पुराना वाला लेक्चर याद आ गया होगा रिलेशनल अलजेब्रा में जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एग्जांपल करेंगे तो आई होप कि फिर बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन लगाते हैं। अच्छा, सपोज यू आर आस्क्ड कि जी लिस्ट ब्रांचेस एंड प्रॉपर्टीज दैट आर इन सेम सिटी अलोंग विद एनी अनमैच्ड ब्रांचेस। पहली बात, हमने वो ब्रांचेस और प्रॉपर्टीज देखनी है जो सिटी जिनका सेम है। मसलन अगर कोई ब्रांच लंदन में है तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट को लंदन है तो वो भी दिखाओ, लेकिन जो ब्रांचेस है ना बेशक उनकी को अनमैच्ड भी है, मतलब प्रॉपर्टीज फॉर रेंट उस सिटी में नहीं भी है तो वो भी हमें फिर भी दिखाओ। तो इट मीन्स कि वी नीड टू हैव अ लेफ्ट आउटर जॉइन, और लेफ्ट पे हम क्या रखेंगे, ब्रांचेस को। क्यों? क्योंकि ब्रांच वाले टेबल को उसकी वजह यह है कि ब्रांच की हम तमाम रोज दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट बी डॉट स्टैटिक, और कीप इन माइंड इसके अंदर जो टेबल्स यूज होंगे वो वही जो हमने वो थोड़े से डिराइव टेबल है, ब्रांच 1 और प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1 वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि उसके अंदर से कैसे हमारा रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होगा। सिलेक्ट बी डॉट स्टैटिक, अगेन एट्रीब्यूट्स हम सारे रिजल्ट टेबल में दिखा रहे हैं, कॉमा पी डॉट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच 1 बी, और लेफ्ट जॉइन प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी। अच्छा, उसके बाद अब ये जॉइन का एक आपको मैंने बताया था अल्टरनेटिव ऑन, और ऑन के बाद हमने क्या लगा दिया, बी डॉट बी सिटी और इक्वल्स टू पी डॉट पी सिटी। तो मतलब ये तो जॉइन की कंडीशन है, तो अगर मैचिंग होती है तो तब भी
उस पर लगा दो, और अगर कोई अनमैच्ड आती हैं तो वो भी ब्रांच की जो है वो आपकी रोज नजर आएंगी। तो इसमें आप देखें कि ब्रांच की तमाम रोज आएंगी, लेकिन जो ब्रांचेस जिनकी मैचिंग नहीं है प्रॉपर्टी फॉर रेंट में, उनमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए नल आ जाएगा, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। तो अगर इसके रिजल्ट को देखें तो इसमें देखें कि ब्रांचेस हमारे पास तीनों की तीनों थी, ठीक है। उस ब्रांच 1 के में तीनों ये दी हुई थी, तो B003 भी, B004 भी, B002 भी, ग्लासगो, ब्रिस्टल, लंदन। और आप देखें कि B004 जो ब्रिस्टल वाली ब्रांच है उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट ब्रिस्टल में नहीं थी, तो इसलिए आप देखें कि प्रॉपर्टी नंबर और P सिटी जो है उसके लिए क्या आ गया, नल आ गया। तो दैट्स वाई बेसिकली ये क्यों आया कि ये हमने आउटर जॉइन लगाया है। अच्छा जी, ये तो था लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर आप राइट आउटर जॉइन लगाना चाहें फिर क्या करेंगे जी। राइट आउटर जॉइन में बस राइट वाला जो टेबल है उधर लेफ्ट वाला ब्रांच था, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज की अनमैच्ड रोज भी दिखाओ तो हम मतलब राइट आउटर जॉइन लगा सकते हैं। आपकी क्यूरी चेंज होगी, या लिस्ट ब्रांचेस एंड प्रॉपर्टीज इन द सेम सिटी एंड एनी अनमैच्ड प्रॉपर्टीज के, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज भी दिखाओ जिस शहर में है जिनमें कोई ब्रांच नहीं है, मसलन जैसे आपका अबरडीन है। अच्छा, तो हमने वही क्यूरी लिखी, सिर्फ जो आपका चेंज आया है वो राइट आउटर जॉइन का कीवर्ड है, वहां पे लेफ्ट जॉइन था, यहाँ पे राइट जॉइन है। बाकी ऑलमोस्ट क्यूरी वही है, आपका लेफ्ट टेबल अगेन ब्रांच 1B है और राइट वाला टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट 1 है, ठीक है जी। तो आपने क्यूरी लगाई। अब आप देखें कि इसमें तमाम रोज नजर आएंगी, प्रॉपर्टी फॉर रेंट की तमाम रोज नजर आएंगी, लेकिन जो अनमैच्ड रोज होंगी ब्रांच की उनमें वहां पे नल आ जाएगा। बस सिंपल इज दैट। अगर आप इसको देखें तो आप देखें कि अबरडीन वाली जो आपकी प्रॉपर्टी फॉर रेंट है PA14, उसके लिए चूंकि ब्रांच कोई मैचिंग नहीं है तो नल वहां पे आ गया है, और बाकी वही वाले आपकी जो दो ब्रांचेस और जो ऐसी हैं जिनका मतलब प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी 2 है और उसी शहर में जो है वो आपकी ब्रांचेस भी मौजूद हैं। तो ये 3 आपके रिजल्ट में शामिल हो गया है। अब हम फुल आउटर जॉइन की एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फुल आउटर जॉइन भी कोई मसला नहीं है। फुल आउटर जॉइन में हम कहते हैं जी हमें बेशक हमें मतलब ब्रांचेस प्लस प्रॉपर्टीज दिखाओ, और दोनों की अनमैच्ड अगर कोई है, मसलन कोई जिसमें ब्रांच नहीं है वो भी दिखा दो और जिसमें प्रॉपर्टीज नहीं है वो भी दिखा दो। तो मतलब आप इस सूरत में क्या लगाएंगे, आप फुल जॉइन लगाएंगे, आउटर जॉइन। और फुल आउटर जॉइन जो है वो क्या करता है कि दोनों की अनमैच्ड रोज, मतलब इट मींस के वो सब रोज दिखाएगा दोनों टेबल्स की, ठीक है। तो अब कोई भी रो मिस नहीं होगी इस सूरत में। तो आप वही वाला जो है स्टेटमेंट ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा एक जगह पे, और वो एक जगह पे चेंज क्या है कि अब आप लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन के बजाय आप क्या लिखेंगे, फुल जॉइन। और फुल जॉइन की सूरत में आप देखेंगे कि आपकी जो है वो तमाम रोज आ जाएंगी, और इन रोज को अगर आप देखें तो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन भी आ गई और तीनों ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन भी आ गई है। तो कुछ तो मैचिंग थी वो तो आएंगी, लेकिन आप देखते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है पहली हमारी जो रो है PA14 अबरडीन वाली प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट कोई ब्रांच नहीं थी, तो इसलिए ब्रांच वाली साइड पे उनकी जगह पे नल आ गया। जबकि जो हमारी ब्रांच B004 ब्रिस्टल में थी उसके लिए मतलब उसमें कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं था ब्रिस्टल का, तो उसके अगेंस्ट देखें कि प्रॉपर्टी की टेबल के लिए जो है या एट्रीब्यूट्स के लिए वहां पे नल आ गया। तो ये आपका फुल आउटर जॉइन है। तो आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि आउटर जॉइन जो है हम किन सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, ताकि हमें अगर कोई मैचिंग नहीं भी होती तो अगर वो रोज भी हमने इंक्लूड करनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक खास केस स्टडी के ऊपर। आप किसी भी मतलब आप देखें डेटाबेस, आप जब रियल लाइफ में काम करेंगे तो यू कुड वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनके हवाले से आप काम कर सकते हैं। तो आपने अपने जहन में रखना है कि आप कॉन्सेप्ट ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ इधर ही स्पेसिफिक हो। मसलन फ़र्ज़ करें आप फैकल्टी और कोर्सेज के ऊपर मसलन देखें, एक फैकल्टी है तो वो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा सकती है, और ऐसे भी फैकल्टी हो सकती है जो कोर्सेज नहीं पढ़ा रही। तो आपका अगर HOD या आपके जो हायर मैनेजमेंट है, दे आर इंटरेस्टेड कि जी हमें तमाम फैकल्टी की एक स्टेटस रिपोर्ट बताओ, ठीक है, कि वो जो है वो कोर्सेज कौन पढ़ा रहे हैं और कौन से नहीं पढ़ा रहे,
तो मतलब आप फैकल्टी सारी शामिल करना चाहेंगे और जो मैचिंग कोर्सेज हैं वो भी शामिल करना चाहेंगे तो वो भी आ सकते हैं। इसी तरह आप देखना चाहो कि जी कौन से कोर्सेज हैं जो हैं ऑफर मतलब लिस्ट में हैं लेकिन ऑफर नहीं हुआ या फैकल्टी उनको नहीं पढ़ा रही, तो आप इस तरह का भी सिचुएशन, या आप कंप्लीट चाहते हैं कि दोनों का मतलब आप ऐसे फैकल्टी मेंबर भी बताओ जो नहीं कोई कोर्स पढ़ा रहे और ऐसे कोर्सेज भी बताओ जो ऑफर नहीं हो रहे या कोई फैकल्टी मेंबर नहीं पढ़ा रहा। तो मतलब इस सूरत में आप डिपेंड्स कि जी आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपको अब इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी आएंगी जहाँ पे आपको अनमैच्ड रोज भी शो करनी है अपने रिजल्ट के अंदर, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर आउटर जॉइन। इसके बाद एक और हमारा जो है कीवर्ड्स हैं एग्जिस्ट्स एंड नॉट एग्जिस्ट के, इनको हम डिस्कस करेंगे। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट आर फॉर यूज ओनली विद सब क्यूरीज। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये सब क्यूरीज के साथ इस्तेमाल होता है। और कीप इन माइंड कि अगर आपने वो जो लॉजिक वाला या वो आपने पढ़े हुए हैं, जिस तरह हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, तो मतलब जो आपका रिजल्ट होता है या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसी तरह मतलब ये भी एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट भी जो है ना, दे आइदर रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। तो कोई भी इस किस्म की मतलब आपका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। ट्रू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रो इन द रिजल्ट टेबल रिटर्न बाय द सब क्यूरी। तो ट्रू कब होगा? जब कोई भी सब क्यूरी की एक या एक से ज़्यादा रोज वो एग्जिस्ट करें तो वो जो है वो ट्रू होगा। और फॉल्स होगा इफ सब क्यूरी रिटर्न्स एन एम्प्टी रिजल्ट टेबल। नॉट एग्जिस्ट इज द अपोजिट ऑफ एग्जिस्ट। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आई होप इट्स वुड बी वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि एग्जिस्ट जो है वो सिर्फ चेक करता है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, कि मतलब इस तरह की कोई एक रो या ज्यादा रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जिस तरह मतलब सब क्यूरी में हमने पहले अभी तक देखा है कि हम कंपैरिजन में उसको यूज कर रहे थे, तो अगर हम एक एट्रीब्यूट है तो उसके अगेंस्ट एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट में सब क्यूरी में हम यूज करते थे। लेकिन अब चूंकि जो एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट है वो तो उसकी या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो जो उसकी सिलेक्ट लिस्ट है उसके अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर लें। क्यों? क्योंकि हमने कोई कॉलम की वैल्यू नहीं दिखानी, हमने जस्ट वो जो रिजल्ट है एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट का वो तो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। तो मतलब इसलिए इट मीन्स कि आप सिलेक्ट के अंदर जो सब क्यूरी के अंदर सिलेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स भी आप इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इट इज़ जो इसका फॉर्म है कि किस फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा सब क्यूरी से पहले इसको यूज़ करेंगे एग्जिस्ट और उसके बाद वो आपकी सब क्यूरी पैरेंथेसिस में आएगी। एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज यू आर आस्क्ड कि जी फाइंड ऑल स्टाफ हु वर्क इन अ लंदन ब्रांच, राइट। आपसे पूछा गया है जी कि तमाम वो स्टाफ बताओ, उसकी इंफॉर्मेशन बताओ जो लंदन की ब्रांच में काम करते हैं। अगेन अब इसको अगर थोड़ा सा गौर करें तो पहली चीज़ ये कि हमें जो डाटा दिखाना है वो कहाँ से दिखाना है? स्टाफ के रिलेशन का दिखाना है। और दूसरी बात ये कि जो लंदन की ब्रांच में काम करते हैं, अब जो स्टाफ का रिलेशन है या टेबल है उसके अंदर हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है ब्रांच नंबर। अब ब्रांच नंबर तो हमें सिर्फ ब्रांच नंबर बताता है, जो ब्रांच का सिटी है वो तो ब्रांच के टेबल में से मिलता है हमें। लेकिन ये है कि हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में मैच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जहाँ दोनों की ब्रांच नंबर इक्वल हो तो इट मीन्स कि वो उसी ब्रांच में काम कर रहा होगा। और हम देख लेंगे कि उस ब्रांच के टेबल में से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें कि इस लंदन वाली ब्रांच कौन सी है तो वो ब्रांच नंबर हम उधर यूज करवा लें स्टाफ में, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसको आपने होपफुली कोई इसमें इतना मसला नहीं है। अब देखें हमने कहा जी सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ एस वेयर। अब पहले हमने क्या किया था आपको याद होगा, वेयर में हमने क्या कहा था? वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू सिलेक्ट और ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच नंबर एंड सिटी इक्वल्स टू लंदन। तो मतलब इसी किस्म की हमने क्यूरी लिखी थी। तो हम इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेयर एग्जिस्ट और आगे हमने सब क्यूरी लगा दी। अब देखें एग्जिस्ट हमने डिस्कस किया कि एग्जिस्ट विल आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स।
तो जिस रो के लिए मतलब आप देखें कुछ रोज होंगी जिनके लिए ये ट्रू भी रिटर्न कर सकता है, कुछ के लिए फॉल्स, तो जिनके लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो रोज सिलेक्ट होती जाएंगी स्टाफ के रिलेशन में से, और जिनके लिए फॉल्स करेगा तो वो रोज सिलेक्ट नहीं होंगी। तो सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच बी, आप देखें ब्रांच में से हम स्टैरिक हमने यूज किया, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वही वाली बात है कि चूंकि एग्जिस्ट जो है या ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कर रहा होगा, तो अब हम सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब वापस नहीं भेजेगा, ये तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स भेजेगा, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कॉलम लिखते हैं या मल्टीपल कॉलम्स, तो आप सिलेक्ट स्टैरिक कर सकते हैं। और कंडीशन आपकी बड़ी क्लियर है कि जहां पे स्टाफ का ब्रांच नंबर और जो ब्रांच का ब्रांच नंबर है वो इक्वल हो, और सिटी जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो लंदन हो। तो अब आप देखें कि पहले आपकी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब देखें इनर क्यूरी मसलन फर्ज करें जी कि ब्रांच के लिए आपने देखा जी कि ऊपर से एक रो है स्टाफ की ऐसी, उसका ब्रांच नंबर आपने देख लिया और उनको कंपेयर किया कि वो ब्रांच के ब्रांच नंबर के इक्वल है, प्लस सिटी उसका लंदन है, तो वो वाली रो मैच कर जाएगी। मतलब जितनी भी लंदन वाली ब्रांच मसलन जो भी नंबर है, तो वो वाला उधर अगर है स्टाफ का, तो वो ब्रांच नंबर वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ बेसिकली योर रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो इसमें सिर्फ वही वाले स्टाफ मेंबर्स आएंगे जिनकी ब्रांच नंबर वो वाली है जिसका सिटी जो है वो लंदन है। तो इसका रिजल्ट देखें तो दो ही ऐसे लोग हैं जो SL21 SL41 जो कि जो उस ब्रांच में काम करते हैं जिसका सिटी लंदन है। तो दिस इज हाउ द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड। अच्छा, अब एक चीज आप जहन में रखें कि अगर हमने सर्च कंडीशन S डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू B डॉट ब्रांच नंबर इसमें ना दी होती तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि हम कहते कि सिलेक्ट स्टैरिक जो हमारी सब क्यूरी थी जिसमें हमने कंडीशन लगाई होती कि जी वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर एक रो तो है ना, एक ऐसा ब्रांच है जिसके लिए आपका सिटी लंदन है, तो अगर हम उसको कंपेयर ना कर रहे होते इक्वालिटी के लिए, तो फिर आपकी स्टाफ की तमाम रोज रिजल्ट में सिलेक्ट हो जाती। क्यों सिलेक्ट हो जाती? कि आपका जो एग्जिस्ट के बाद सब क्यूरी है वो तो ट्रू रिटर्न करती। ट्रू इसलिए रिटर्न करती कि वो तो सिर्फ ये चेक कर रहा होता कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इक्वल्स टू लंदन, तो देयर एग्जिस्ट आर रो। तो अगर रो एक भी एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपका जो है वो ट्रू रिटर्न होगा और एग्जिस्ट उसको ट्रू लेगा। तो इट मीन्स वो फिर आपकी क्यूरी क्या बन जाएगी, वो ऑलमोस्ट जो है वो आपकी सिलेक्ट जैसे आप देखें कि वो एक सिंपल इसी तरह की बन जाएगी, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। और जो फाइनल आपकी मतलब जो आउटर आपकी क्यूरी भी अगर देखें तो वो देखें कि वो किस तरह बन जाएगी, सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ट्रू। वेयर ट्रू मींस कि हर रो के लिए वो ट्रू ही है, तो फिर आपकी तमाम रोज जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन जब हम वो कंडीशन लगा देते हैं कि S डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B डॉट ब्रांच नंबर एंड सिटी इज इक्वल टू लंदन, तो फिर वो इस चीज को भी इंश्योर करता है कि दोनों स्टाफ का ब्रांच नंबर और ब्रांच का ब्रांच नंबर जब इक्वल हैं, मींस कि वो दोनों की एक ही है, तो फिर वो वाला बंदा सिलेक्ट होगा, हर कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो मतलब इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा और अगर नहीं इंक्लूड करते तो फिर क्या होगा। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल वेज में लिखी जा सकती हैं। तो इसी जो है आप जो क्यूरी जो हमने एग्जिस्ट के थ्रू लिखी है इसको हम सिंपल जॉइन के थ्रू भी लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ S कॉमा ब्रांच B वेयर S डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B डॉट ब्रांच नंबर एंड सिटी इज इक्वल टू लंदन। तो सेम रिजल्ट विल बी रिटर्न, कोई इसमें मसला नहीं। आई होप कि ये कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो मतलब आप चाहे एग्जिस्ट यूज कर लें चाहे आप जॉइन यूज कर लें, दोनों की सूरत में ये मतलब एक ही रिजल्ट रिटर्न करेगी। अगली जो चीजें हैं अगेन जो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, ये वही वाली चीजें हैं, हम इनको फिर देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्ट और डिफरेंस को। अगेन जो आपके ये तीनों ऑपरेशंस हैं जैसे हमने उधर डिस्कस किया था कि दे आर यूज्ड टू कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम टू और मोर क्यूरीज एंड द रिजल्टेंट इज अ सिंगल
टेबल और उसको एक टेबल में आप अगर रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं तो आप इन ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मेरा रिलेशनल अलजेब्रा वाला ऑपरेशन जो चैप्टर है, तो उसमें आपको याद होगा कि यूनियन में क्या होता है कि यूनियन इज ऑलवेज बिटवीन टू टेबल्स और ए एंड बी, और इसके अंदर रोज होंगी वो वाली होंगी जो ए में है या बी में से हैं या दोनों में से हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमेशा जो दोनों में कॉमन है रोज वही वाली होती हैं, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस या एक्सेप्ट भी इसके लिए टर्म यूज होती है इसके स्किल के अंदर, और ए मतलब माइनस बी अगर हमने निकालना है या ए डिफरेंस बी, तो इट मींस ए टेबल की ऐसी रोज जो बी में मौजूद नहीं है, तो वो वाली आपकी जो है आपका डिफरेंस होगा। एंड कीप इन माइंड कि जी हमने उस टाइम भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि इन तीनों ऑपरेशंस के लिए मैंडेटरी है कि आपके दोनों जो टेबल्स हैं दे शुड बी यूनियन कंपैटिबल। और यूनियन कंपैटिबिलिटी अगर आपको याद है तो यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए दो बड़ी खास कंडीशंस थी। पहली बात कि डिग्री दोनों रिलेशंस की सेम होनी चाहिए, कि अगर एक टेबल के 4 कॉलम्स है तो दूसरे के भी 4, पहले के 3 है तो दूसरे के भी 3, और जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स है, कोरस्पॉन्डिंग से क्या मुराद कि अगर पहला एट्रीब्यूट एक डोमेन पर डिफाइंड है तो दूसरे टेबल का भी पहला एट्रीब्यूट उसी डोमेन के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स एक ही वो एट्रीब्यूट होना चाहिए, या दूसरे डोमेन पे डिफाइंड है तो दूसरे टेबल का दूसरा है वो, मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग है, तो पहले का और दूसरे टेबल के पहले एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पहले टेबल का और दूसरे का दूसरा एट्रीब्यूट एंड सो ऑन। तो मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड ऑन दी सेम डोमेन। तो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी, मैं अब इसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा। अच्छा, कीप इन माइंड कि जी ISO प्रोवाइड्स दी ऑपरेटर्स फॉर यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। डिफरेंस को एक्सेप्ट कहेंगे, ये जहन में रखना है कि यहाँ पे जस्ट नेम चेंज है, और इसके लिए जो फॉर्मेट है वो क्या है कि ऑपरेटर है, उसके बाद ऑल की ऑप्शन है और कोरस्पॉन्डिंग बाय है, और उसके बाद हमारे कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा जो भी हम स्पेसिफाई करना चाहें। अब इफ कोरस्पॉन्डिंग बाय इज स्पेसिफाइड सेट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन दी नेम कॉलम्स। तो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग बाय यूज करते हैं तो हमें आगे कॉलम भी जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो फिर उसके ऊपर आपका जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इफ कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफाइड बट नॉट बाय क्लास, मतलब अगर आप सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं और बाय नहीं दे रहे, आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शनल वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग की अलग है, बाय की अलग है, तो इट मींस कोरस्पॉन्डिंग भी ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, बाय भी ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग दे रहे हैं और बाय नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा, इफ कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफाइड बट नॉट बाय क्लास, ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। तो मतलब अगर जो उनके अंदर कॉमन है दोनों टेबल्स के अंदर, ऑटोमेटिकली उन्हीं के ऊपर होगा। लेकिन अगर जो पहली सूरत में अगर कोरस्पॉन्डिंग बाय दे रहे हैं तो फिर वही होगा जिसकी बेस पे आप जो आगे नाम आपने दिया होगा। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इफ ऑल इज स्पेसिफाइड, ऑल का आपको पता है कि जी ऑल है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो डुप्लीकेट रोज भी शामिल करेगा। अच्छा, ये आपकी डायग्राम है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द एग्जांपल्स। सपोज वी आर आस्क्ड लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज आइदर अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रॉपर्टी। और अब पहली बात जहन में रख लें कि दोनों टेबल्स को यूनियन कंपैटिबल बनाना है, तो यूनियन कंपैटिबल बनाने के लिए हमने सिर्फ सिटी दोनों से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, वी आर इंटरेस्टेड कि जी वेयर देयर इज आइदर अ ब्रांच, चाहे कोई ब्रांच है या चाहे कोई प्रॉपर्टी है, हमें वो सिटीज दिखाओ। तो पहली बात देखें, अब ब्रांच का टेबल है और प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है, तो हमने कहा जी सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज नॉट नल, जहां सिटी की वैल्यू में कुछ ना कुछ है। और दूसरी हमारी सब क्यूरी है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो है सिलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर सिटी इज नॉट नल, और इनके दरमियान यूनियन हमने लगा दिया है, ठीक है। तो आप पहले इनका अलग अलग इन जो पैरेंथेसिस में क्यूरीज है इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको वो तमाम सिटीज मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से भी सिटीज मिल जाएंगे, और फिर आप इनका यूनियन निकाल के देख लें तो उसमें जो डुप्लीकेट होंगे वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी जो है वो सारे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब इसी क्यूरी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आप कोरस्पॉन्डिंग बाय भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप
जब एक फ़र्क इसमें देख लें कि जब आपने यूनियन का कीवर्ड यूज़ किया तो आपको स्पेसिफाई करने पड़े हैं सेलेक्ट के अंदर वो एट्रीब्यूट, तो उनके यूनियन कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए। लेकिन जब आप ये नहीं स्पेसिफाई कर रहे तो आप सेलेक्ट स्टैटिक कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ देखें कोरस्पॉन्डिंग बाय के बाद जो आपका सिटी है उसके ऊपर आएगा। तो इट मीन्स यू डोंट नीड टू मेक इट यूनियन कंपैटिबल, वो ऑटोमेटिकली फिर उसी के ऊपर जो कॉमन आपका सिटी है उसी के ऊपर वो रिजल्ट दिखाएगा। तो मतलब इसी क्यूरी को इस तरह भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज नॉट नल यूनियन कोरस्पॉन्डिंग बाय, और अब देखिए सिटी आ गया तो इट मींस कि अब जो रिजल्ट टेबल आएगा वो सिर्फ, या जो आपकी यूनियन है वो सिर्फ सिटी के ऊपर अप्लाई होगा। और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर सिटी इज नॉट नल, अदरवाइज मतलब ये क्यूरी सेम है। अब इसका रिजल्ट अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपके 4 सिटीज आ जाएंगे, लंदन, ग्लासगो, अबरडीन, ब्रिस्टल, ठीक है जी। तो ये आपकी जो डुप्लीकेट रोज हैं वो एक दफा नजर आएंगी आपको। सपोज अगर आपसे कहा जाता है लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड अ प्रॉपर्टी, इट मींस के सिर्फ वो सिटी दिखाने हैं जहां पे आपकी ब्रांच ऑफिस भी है प्लस प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी है। तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्ट ऑपरेशन कि जी जो दोनों में कॉमन है। तो मतलब सबसे पहली बात यह है कि आप बेहतर यह है कि ये जो पहले पैरेंथेसिस के अंदर क्यूरीज लिखी है ना, ये आप जरा पहले इनके रिजल्ट्स लिख लें अपने सामने। आप मतलब ब्रांच के अंदर से सिटी सारे सिलेक्ट कर लो, और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसके अंदर से भी सिटी सिलेक्ट कर लो, और फिर आप इनके ऊपर इनमें से वो खुद ही आपको नजर आ जाएगा कि कौन से कॉमन है और कौन से कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्ट में अब क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है वही वाले आएंगे। अब इसी को हम दूसरे अंदाज में भी वो कोरस्पॉन्डिंग बाय की क्यूरी मतलब इसी को लिख सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग बाय में फ़र्क आपको मैंने बता दिया कि आप सिलेक्ट स्टैटिक कर सकते हैं, वहाँ पे हमें फिर वो वही वाले एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट करने थे, अब हम सिलेक्ट स्टैटिक कर रहे हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग बाय में हमने एट्रीब्यूट दिया उसका रिजल्ट आएगा सिर्फ रिजल्ट में, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें अब जो दोनों में कॉमन है, तो आप देखते हैं कि आपके जो अबरडीन, ग्लासगो और लंदन है, ये ऐसे 3 शहर हैं जहाँ पे तीनों जो है ये आपके जो दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी है और आपकी जो है वो ब्रांच ऑफिस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब इसी क्यूरी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप ज्वाइन या एग्जिस्ट को भी यूज़ करके, मतलब जैसे मैंने बताया कि एसक्यूएल की एक खास बात ये भी है कि बहुत सारी क्यूरीज को आप मल्टीपल वेज में लिख सकते हो। तो आप इसी क्यूरी को इस तरह भी लिख सकते हो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बी डॉट सिटी, डिस्टिंक्ट इसलिए कि हम डुप्लीकेट नहीं चाहते, फ्रॉम ब्रांच बी प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी वेयर बी डॉट सिटी इज इक्वल टू पी डॉट सिटी, या सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच बी वेयर एग्जिस्ट, और सब क्यूरी हमारी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी वेयर बी डॉट सिटी इज इक्वल टू पी डॉट सिटी। तो मतलब ये दोनों वही वाले रिजल्ट जो है आपके रिटर्न करेंगे। सपोज हमसे कहा जाता है लिस्ट ऑफ ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि सिर्फ वो शहर दिखाने हैं जिनमें ब्रांच ऑफिस तो है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑपरेशन, कि जी हमारे सिर्फ वो वाली टुपल्स चाहिए, रोज चाहिए पहले टेबल की जो दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है। तो मतलब हमें ब्रांच की वो वाली टुपल्स चाहिए, मतलब सिटी के हवाले से जो है आपकी प्रॉपर्टी फॉर रेंट में नहीं है। तो मतलब आप एक्सेप्ट, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस के बजाय एक्सेप्ट यूज होता है, तो आप एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, और सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच और एक्सेप्ट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर सिलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो सिर्फ वो वाले सिटीज आ जाएंगे जहां पे आपकी ब्रांच ऑफिस तो है लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। और इसी क्यूरी को दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच और एक्सेप्ट कोरस्पॉन्डिंग बाय सिटी, और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो आई होप इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सिर्फ वो वाले शहर आ जाएंगे, और वो शहर एक ही है, ब्रिस्टल ब्रांच, जिसका ब्रांच ऑफिस तो है ब्रिस्टल में लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। लंदन और ग्लासगो दोनों उधर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, इसी क्यूरी को अब हम बगैर जो है ना उसके एक्सेप्ट के भी यूज कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं नॉट इन को यूज करते हुए और नॉट एग्जिस्ट को यूज करते हुए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एक ही क्यूरी को कैसे मल्टीपल वेज में लिखा जा सकता है। तो आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी
नॉट इन, आपको याद है इन क्या करता था कि इन अगर कोई भी सिटी उस लिस्ट में से होगा तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब नॉट इन करेंगे तो इट मींस इन सिटी के अलावा कोई होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपने जो नॉट इन में सेलेक्ट किया वो सिटी वो वाले सेलेक्ट किए जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले हैं। तो इट मींस जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले सिटीज हैं वो तो नहीं, जो मैच ना हो वो वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ब्रिस्टल ही एक वाहिद होगा जो उसमें सेलेक्ट होगा। और इसी तरह आप देखें जो इसकी दूसरी फॉर्म है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वी वेयर नॉट एग्जिस्ट, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट P, और वेयर B डॉट सिटी इज इक्वल टू P डॉट सिटी। तो मतलब सिर्फ ब्रिस्टल वाला एक ऐसा है जिसके लिए ये फॉल्स रिटर्न होगा, और डेफिनेटली फिर ब्रिस्टल जो है आपका जो है वो रिजल्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। ये अब हमारा सेलेक्ट का बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो सेशन इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सिलेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ है, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम जो है वो डाटा को रिट्रीव करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। और अभी में भी बहुत सारे और टेक्स्ट बुक्स, आप अगर कोई एसक्यूएल को ज़रा और डिटेल से देखें तो शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हों, लेकिन स्टिल आई हैव ट्राइड कि जी जो बुक में जितनी एग्जांपल्स थी हम उन सबको वन बाय वन जो है डिटेल से देख लें और उनको थोड़ा सा समझ लें। तो आई होप कि जो सिलेक्ट है आपको काफ़ी हद तक जो है आपने उसकी वेरिएशन सारी तकरीबन सारी, क्योंकि बता रहा हूँ कि मे बी आप थोड़ी सी और टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करें तो आपको शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जो इस बुक में शायद नहीं डिस्कस हुई हैं, लेकिन आई होप कि बहुत हद तक हमने इसको कवर कर लिया। अब इसके बाद DML के जो दूसरे ऑपरेशंस हैं चंद एक हम उनको डिस्कस करेंगे। तो DML जैसे हमने कहा था डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग से सारी कमांड्स जो है वो रिलेटेड होती हैं। और हमने अगर आपको याद हो तो बारहा मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हमारे पास दो तरह की जो है मेजरली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक DDL है हमारे पास और एक DML है। और पहले हम DDL नहीं कवर कर रहे हैं, हम DML कवर कर रहे हैं, और वी आर एज्यूमिंग कि जी हमारा वो डेफिनेशंस बनी हुई हैं और डाटा उसमें पड़ा हुआ है, और उस सैम्पल केस स्टडी के ऊपर हम अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और DML में हमने देखा था कि हमारे पास 4 जो है वो मेजर ऑपरेशंस हैं, जिनमें सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। तो हमने एक जो उसका पोर्शन है वो कवर किया है, वो सिलेक्ट का कवर किया है। तो अब हम देखते हैं मजीद जो डाटाबेस के ऊपर अपडेट्स की जा सकती हैं। अपडेट से मुराद ये है कि कोई इंसर्ट कर दिया, उसके मॉडिफाई कर दिया, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, रो है उसको, या डिलीट किया, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड जी कि आपकी मतलब जो ऑपरेशंस हैं वो सिलेक्ट के अलावा ये भी ऑपरेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जो कम्प्लेक्स पोर्शन है ना हमने वो कवर कर लिया। सेलेक्ट इज कंसिडर्ड मोर कम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दीज अदर स्टेटमेंट्स, जैसे इंसर्ट है या अपडेट है या डिलीट है। तो मतलब और 3 जो हम इसके फ्लेवर पढ़ने जा रहे हैं वो इंसर्ट है जी। इंसर्ट इज यूज्ड टू ऐड न्यू रोज टू द टेबल और रिलेशन। तो इंसर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अपडेट है, अपडेट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज के। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे का एड्रेस था वो मॉडिफाई करना है, उसकी कोई पोजीशन चेंज होगी, प्रमोशन होगी, वो करना है, उसकी सैलरी बढ़ गई वो चेंज करना है, तो इस सूरत में मतलब एग्जिस्टिंग रोज हैं और उनका कोई फील्ड्स की वैल्यू चेंज करनी है, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है, तो वी विल बी यूजिंग अपडेट। इसी तरह कोई रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, रोज को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट का जो है वो स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 जो है वो अभी देखेंगे। इंसर्ट बाज़ औक़ात हम सिंगल रो मतलब रो बाय रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम एज अ ग्रुप मल्टीपल रोज भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पहली हमारी इंसर्ट की सिचुएशन है वो एक सिंगल रो के हवाले से है। कीप इन माइंड कि इंसर्ट का जो फॉर्मेट है वो ऐसे होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इंसर्ट इनटू, ये आपके कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, टेबल नेम, जिस टेबल में इंसर्ट करना है, डेफिनेटली आपने कहाँ रोज इंसर्ट करनी होती है, किसी टेबल में करनी होती हैं। और ऑप्शनल आगे क्या है, कॉलम लिस्ट है, तो आप कॉलम लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप दें, ठीक है। वैल्यूज़ अगेन कीवर्ड है। अच्छा, आपको याद होगा कि ये जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी कि जो कैपिटल में होंगे ना, ये आपके बेसिकली
आपके कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम डाटा वैल्यू लिस्ट जो वैल्यू है उस रो के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए, वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। अब कीप इन माइंड जी, टेबल नेम में बी आइदर अ बेस टेबल और एन अपडेटेबल व्यू। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो है जो टेबल नेम है ये व्यू भी हो सकता है, लेकिन अपडेटेबल व्यू जो ऐसा व्यू जिसको अपडेट किया जा सकता है, जिसमें इंसर्ट अलाउड है हमें, और या बेस टेबल जो डिराइव्ड नहीं है, जैसे मतलब कोई किसी और से वो डिराइव्ड नहीं है, एक एग्जिस्ट करता है हमारा डेटाबेस में, वो वाला टेबल हो सकता है। द कॉलम लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम नेम सेपरेटेड बाय कॉमास, और वो जो ऊपर हम कॉलम लिस्ट देते हैं टेबल नेम के बाद, वो डेफिनेटली उस टेबल के कॉलम्स हैं, और कॉलम्स मल्टीपल को सेपरेट करने के लिए कॉमा हम यूज़ करेंगे। द कॉलम लिस्ट इज़ ऑप्शनल, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, फॉर्मेटेड। अगर हम नहीं यूज़ करते तो इट मीन्स कि फिर हमें, अब देखें, आप वैल्यू एक रो की जब दे रहे हैं एक टेबल के लिए, तो टेबल इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। तो मसलन मैं किस सीक्वेंस में दूं, तो वो सीक्वेंस कॉलम्स का कौन सा होगा जो आप जब टेबल क्रिएट कर रहे होंगे ना, या टेबल की डेफिनेशन दे रहे होंगे। चूंकि अभी ये चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की, ये डीडीएल का पोर्शन है, तो ये उधर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड कि हम टेबल जब भी कोई ये टेबल का डाटा तो बाद में इंसर्ट करेंगे ना, रोज तो बाद में ऐड करेंगे, पहले उस टेबल को डिफाइन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। तो जो ऑर्डर कॉलम्स का हमने उधर दिया होगा ना, मसलन हमने कहा जी पहला कॉलम हमारा स्टाफ के टेबल में स्टाफ नंबर है, दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम है, तीसरा कॉलम लास्ट नेम है, तो जो सीक्वेंस हमने उधर स्पेसिफाई किया होगा वही वाला सीक्वेंस कंसिडर किया जाएगा अगर हम कॉलम लिस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते इंसर्ट इनटू की कमांड में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, if specified then any columns that are omitted from the list must have been declared as null। अच्छा, अगर आप कॉलम लिस्ट स्पेसिफाई कर रहे हो तो अगर कोई आपने छोड़ दिए हैं कॉलम, दरमियान में आ रहे हैं कॉलम, तो ज़रूरी है कि अगर आप उनकी वैल्यू नहीं दे रहे तो उनको फिर नल बताया गया हो डाटा डेफिनेशन के अंदर। नल मैंने आपको बताया था ना कि अब आपके नल ऐसे एक अननाउन वैल्यू होती है या अभी जो अवेलेबल नहीं है। तो मसलन एक टेबल का एक कॉलम है जिसको आप कहते हो कि वो नल हो ही नहीं सकता, तो आप डेफिनेटली जब आप उसकी वैल्यू नहीं सप्लाई करोगे तो उधर क्या आएगा, नल। तो इट इज मैंडेटरी कि जब आपकी डेफिनेशन में वो स्पेसिफाई एज नल किया गया हो कि वो नल को अलाउ कर रहा हो। अगर नहीं करेगा तो इट मींस नल नहीं स्टोर हो सकता। नल नहीं जब स्टोर हो सकता तो इट मींस यू मस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम, अदरवाइज वो आप रो इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखना है। एक और ऑप्शन होती है, चूंकि ये डीडीएल की चीज़ें हम इधर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एम्फसाइज नहीं करेंगे, तो एक डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन होती है कि मसलन अगर आप वैल्यू नहीं सप्लाई करते ना तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाए। लेकिन ये सब जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो उस टाइम की बातें तो हम फ़िलहाल यही इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसी तरह ही इंशाल्लाह आगे जाके इनको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, जो डाटा वैल्यू लिस्ट है, इट मस्ट मैच द कॉलम लिस्ट एज फॉलोज। क्या मतलब जी कि जो डाटा वैल्यूज देते हैं हम, वो कॉलम लिस्ट को किस तरह मैच करनी चाहिए कि जितनी डाटा वैल्यू की लिस्ट दी है, मसलन आपने 4 चीज़ें वैल्यू दी एट्रीब्यूट्स की, तो इट मींस ऊपर आपके कॉलम लिस्ट भी 4 ही होने चाहिए। तो मतलब उन दोनों की द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच लिस्ट मस्ट बी द सेम, कि अगर 4 ऊपर कॉलम दिए हैं तो नीचे 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस इन द पोजीशन ऑफ आइटम्स इन द टू लिस्ट, के मींस के जो पहली वैल्यूज के अंदर, जो लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू है, दैट शुड बी करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम, दूसरी वाली दूसरे कॉलम को, तीसरी वाले तीसरे कॉलम को, एंड सो ऑन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि द डाटा टाइप ऑफ ईच आइटम इन द डाटा वैल्यू लिस्ट मस्ट बी कंपैटिबल विद द डाटा टाइप ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो अगर फर्स्ट आपका कॉलम स्टाफ नंबर था तो पहला जो वैल्यू है वो स्टाफ नंबर की होनी चाहिए, और अगर उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर थी तो नीचे वाले की भी कैरेक्टर में ही होने चाहिए। तो मतलब अगर डेट है तो डेट होनी चाहिए उस एट्रीब्यूट कॉलम की। तो मतलब आपकी वही एग्जैक्टली वही वाले उन्हीं कॉलम्स के वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, ना कि किसी और वैल्यूज। ठीक है जी, तो आपने उस ऑर्डर का भी ख्याल रखना, ये ना हो कि उनका ऑर्डर को आगे पीछे कर दें तो फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इंसर्ट बहुत सिंपल है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। इंसर्ट की एक एग्जांपल देखते हैं कि एक नई रो है और ये उसका डाटा है, तो आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप गौर से देखें कि हम तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए डाटा सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इंसर्ट इनटू स्टाफ टेबल के नाम के बाद हमने कॉलम लिस्ट नहीं लिखी। कॉलम लिस्ट नहीं लिखी तो फिर
कॉलम का ऑर्डर किस तरह होगा। जो वैल्यूज के अंदर देखें, वैल्यूज के अंदर पहली जो आप देखें तो SG16 है, तो इट मींस ये स्टाफ नंबर है। एलन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट नेम, ब्राउन लास्ट नेम, असिस्टेंट उसकी पोजीशन है, मेल उसका सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 25/5/1957 है, जो उसकी सैलरी है दैट इज 8300, और जो उसकी ब्रांच नंबर है वो B003 है। अब ये जो कॉलम का जो ऑर्डर है ये वही है जो डाटा जब उस टेबल को डिफाइन किया गया तो ये वाला मतलब कॉलम का जो है वो सीक्वेंस उधर डिफाइंड है, इसलिए हमने यही वाला यूज़ किया है। तो मतलब आप पॉसिबिलिटी होती है कि आप कॉलम लिस्ट डिफाइन करें ना करें, लेकिन अगर नहीं डिफाइन कर रहे तो फिर कॉलम का ऑर्डर वही वाला होगा, मींस कि आपने वैल्यूज उसी सीक्वेंस में देनी है जिसमें जब वो उस टेबल को क्रिएट किया गया था तो जो कॉलम्स का सीक्वेंस था वही वाला आपने यूज़ करना है। और फर्ज करें मतलब अगर आप नहीं करना चाहते, कुछ वैल्यूज छोड़ना चाहते हैं तो आप दरमियान में नल, लेकिन कीप इन माइंड कि वो फिर नल अलाउ कर रहे हो, कोई भी वो जो कॉलम से अगर नहीं करते तो फिर आप उनको वो नल नहीं कर सकते। इसी की थोड़ी सी वेरिएशन देखते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें जी आपने अब देखें आपने कॉलम स्पेसिफाई कर दिए, आपने स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए डाटा दे रहे हैं। आप देखें स्टाफ नंबर के लिए डाटा दे रहे हैं, फर्स्ट नेम के लिए दे रहे हैं, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर। आपने जो आपका सेक्स है उसको भी मिस कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ को भी मिस कर दिया, ठीक है। दोनों उन कॉलम्स के लिए वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन कीप इन माइंड कि अब वो दोनों एट्रीब्यूट दे शुड अलाउ नल्स। क्यों? क्योंकि जब हम इधर उनकी वैल्यू ही नहीं देंगे तो उधर क्या आएगा, नल आएगा। तो अगर उस टेबल की डेफिनेशन में ये बताया गया कि ये नल नहीं ले सकता, मतलब ये अब चीज़ें चूँकि उस टाइम DDL के हवाले से हैं तो, लेकिन हमें थोड़ा सा इधर यही समझना है कि अगर उन टेबल में नल नहीं आ सकता तो फिर तो ये रो इंसर्ट हो ही नहीं सकती, हमें उनकी वैल्यू मस्ट सप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि जब उनको नल अलाउ हो तो फिर अब कोई मसला नहीं है। तो आप देखें कि जो पहली वैल्यू है SG44 वो स्टाफ नंबर के लिए, एन जॉन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, पोजीशन उसकी असिस्टेंट है, तो मतलब इसकी कोरस्पॉन्डेंस है। देखें कि हर वैल्यू की हर कॉलम के साथ करस्पॉन्डेंस है। अगर मतलब इसमें ये नहीं करना आपने कि स्टाफ नंबर पहले दिया है तो नेम पे वैल्यूज के अंदर पहले आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरह करेंगे तो आ तो जाएगा क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी, वो NA जो है वो स्टाफ नंबर में चला जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज़, और आप सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन जो दो चीज़ें हैं जो अगेन वही आपकी सेक्स और डेट ऑफ बर्थ, उनके लिए आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करें तो वहाँ पे आप नल जो है खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उन दोनों के लिए नल वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगेन इधर भी वही वाला इशू है कि वो दोनों एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स जो हैं वो नल को अलाउ करते होंगे तो तब ये नल जो है या ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा, अदरवाइज इंसर्ट नहीं हो पाएगा। मल्टी रोज इंसर्ट, बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं और बहुत सारा रोज़ इकट्ठी जो है वो किसी टेबल में से सिलेक्ट करके उसमें कॉपी कर लेते हैं, तो इस सूरत में हम मल्टीपल रोज़ जो है एक ही दफ़ा में इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये जो है ये भी कॉमन है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम लिस्ट और फिर नीचे सिलेक्ट, और सिलेक्ट आपको पता है कि सिलेक्ट जो भी रिटर्न करेगी वो सारा कुछ इसमें इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारा एक टेबल है स्टाफ प्रॉप काउंट के नाम से, दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टाफ एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे मैनेज। सपोज इस किस्म की एक सिचुएशन है, तो अब हम इसके मतलब हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाफ प्रॉप काउंट, स्टाफ नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और कितनी वो प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है उसका प्रॉप काउंट है। तो अगर इसको हमने इसका डाटा जो है वो सारा कलेक्ट करना है, अगर वो जो आगे पहले हमने एग्जांपल्स देखी थी और इस सारे को इंसर्ट करवाना है इसके अंदर, तो वो कैसे कराएंगे कि इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉप काउंट। अब कीप इन माइंड कि ये जो स्टाफ प्रॉप काउंट का जो टेबल है ये हमने डिफाइन कर दिया है पहले से, वी एज्यूम कि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है और इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। और देखें नीचे हमने वही कमांड दी, सिलेक्ट s.staff नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा काउंट स्टैरिक फ्रॉम स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट, क्योंकि ये दोनों से इंफॉर्मेशन आएगी, वेयर s.staff नंबर इक्वल्स टू p.staff नंबर ग्रुप बाय s.staff नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। क्यों? क्योंकि हम हर स्टाफ के
अगेंस्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज कितनी मैनेज कर रहा है वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देखें कि 3 जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो बगैर एग्रीगेट फंक्शन के आए, तो जो बगैर एग्रीगेट फंक्शन के आता है उसको हमें ग्रुप बाय में इंक्लूड करना पड़ता है। अब यूनियन देखें हम ले रहे हैं नीचे सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये वही वाले 3 एट्रीब्यूट्स हैं और चौथे में हमने 0 कर दिया। फ्रॉम स्टाफ वेयर स्टाफ नंबर नॉट इन सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अब ये जो नीचे वाली हमारी यूनियन के बाद वाला पोर्शन है ये उन स्टाफ मेंबर्स के लिए है जो कोई भी प्रॉपर्टीज मैनेज नहीं कर रहे। तो मतलब अगर हम उनकी भी डिटेल दिखाना चाहें तो फिर हमें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लिखेंगे तो सिर्फ वो वाले स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड होंगे जो कुछ प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हमें तो सारे लोगों का मतलब एक वो स्टेटस रिपोर्ट सी बनानी है कि हर स्टाफ मेंबर उसकी डिटेल प्लस वो कितनी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा है। तो ये जो नीचे वाला यूनियन के बाद पोर्शन है आपका, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली कोई भी 0 प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए काउंट वाला जो हमारा उसके अगेंस्ट है इसमें हमने खुद से 0 एक कांस्टेंट यूज कर लिया कि उनकी प्रॉपर्टीज जो वो मैनेज कर रहे होंगे वो 0 होंगे। तो ये हमारे जो है इस तरह बेसिकली हम ये तमाम जो है लोगों को, अब इसमें मल्टीपल रोज रिटर्न होंगी इस यूनियन के ऑपरेशन के बाद, और ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली उस स्टाफ प्रॉप काउंट के टेबल में इंसर्ट हो जाएंगी। तो इसका अब रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट आएगा जैसे SG14 है ये 1 प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, जैसे SG37 है ये 2 कर रहा है, SL21 कोई भी नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका 0 वो जो कांस्टेंट है। अब कीप इन माइंड कि अगर हम यूनियन के बाद वाला हिस्सा जो है वो अगर छोड़ दें तो इसमें ये जो 0 के साथ आ रहे हैं जो लोग प्रॉपर्टीज कोई भी मैनेज नहीं कर रहे फिर ये डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इनको भी अगर दिखाना है तो इनके लिए हमने वो वाला पोर्शन और यूनियन इसीलिए किया कि जो दोनों में हैं वो आ जाए। इसके बाद जी हमारा ऑपरेशन है अपडेट का। अपडेट जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज यू वांट टू अपडेट मतलब अ सर्टन वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की, तो उसके लिए आप अपडेट की कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपडेट टेबल नेम और जिस टेबल के अंदर से आपने अपडेट करना है उसके बाद सेट कॉलम नेम 1, जिस कॉलम के लिए आपने इक्वल्स टू डाटा वैल्यू 1 मतलब जो भी वैल्यू आपने अपडेट करनी है, और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट जितने भी कॉलम्स को आपने मतलब मॉडिफाई करना है उनकी वैल्यूज़ को तो आपने नई वैल्यूज़ दे देनी है। और अगर वेयर आपका ऑप्शनल है कि आप कोई वेयर भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, डिपेंड्स। अगर आप वेयर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि हर एक रो के लिए वो आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा, और अगर वेयर लगाएंगे तो सिर्फ जो सर्च कंडीशन या वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करेंगी रोज सिर्फ उनके लिए वो अपडेट अप्लाई होगा। तो टेबल नेम कैन बी द नेम ऑफ द बेस टेबल और एन अपडेटेबल व्यू। द सेट क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम्स ऑफ 1 और मोर कॉलम्स दैट आर टू बी अपडेटेड। उन कॉलम्स के लिए आप उनको अपडेट कर रहे होंगे, ये वो हैं। वेयर मैंने जैसे बताया कि ऑप्शनल है, ठीक है जी। अगर आप वेयर लगाते हैं तो सिर्फ वो वाली रोज होंगी जो उस वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करेंगी, और अगर वेयर नहीं लगाया जाता तो फिर तमाम रोज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। अब कीप इन माइंड कि जो नई वैल्यूज आप दे रहे हैं एट्रीब्यूट्स के लिए दे शुड बी कंपैटिबल विद द डाटा टाइप ऑफ द कोरिस्पोंडिंग कॉलम की। ये ना हो कि अब आप कोई वैल्यू उसके अंदर ऐसे एट्रीब्यूट के अंदर या कॉलम के अंदर दे दें जो उससे कंपैटिबल ही नहीं है, तो वो फिर आपके ये वाला ऑपरेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल्स है हमारी, एक ही स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ। सपोज यू आर आस्क्ड कि जी गिव ऑल स्टाफ अ 3% पे इंक्रीज, कि जी आपसे कहा जाता है तमाम स्टाफ को 3% सैलरी उनकी इंक्रीज कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं जी, सिंपल कमांड है। जैसे मैंने बताया कि अब एज कंपेयर टू सिलेक्ट स्टेटमेंट ये बहुत सिंपल हैं आपकी कमांड्स, अपडेट होगी, इंसर्ट होगी या डिलीट होगी। तो आपने कहा जी अपडेट स्टाफ, क्यों? क्योंकि आप स्टाफ के रिलेशन में अपडेट करने, कौन से एट्रीब्यूट को अपडेट कर रहे हैं? सिर्फ एक एट्रीब्यूट को, सैलरी को। और सैलरी को कैसे इंक्रीज करना है, मतलब आपको अब ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं थोड़ी सी के जो आपने जितना इंक्रीज होता है आप उसको 1 प्लस कर लें। तो अब 3% है तो 3 का परसेंट करके आप कन्वर्ट करें तो ये 0.03 बनता है, तो 1.03 से मल्टीप्लाई करा दें सैलरी को, तो फिर उसकी सैलरी वो उसमें 3% इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सैलरी का 3% निकालना पड़ेगा और फिर सैलरी प्लस वो 3% जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सिंपलेस्ट वे ये होता है
इंक्रीज या डिक्रीज करने का कि आप उसका वो जो परसेंट है वो निकाल लें और उसको 1 इंक्रीज है तो 1 में ऐड कर लें, और अगर डिक्रीज करना है तो वो 1 में माइनस कर लें। आई होप कि ये आपने मैथमेटिक्स बेसिक्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो हमने कहा जी सेट के बाद जिस एट्रीब्यूट को हमने मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, सैलरी, और उसको नई वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.03। तो अब चूंकि इसमें एक वेयर क्लॉज नहीं लगा हुआ तो इट मींस हर रो के लिए, हम किसी स्पेसिफिक रो नहीं, उस स्टाफ के टेबल में जितनी रोज होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी, हर एक की सैलरी जो है वो चेंज हो जाएगी और सैलरी की वैल्यू जितनी भी ऑलरेडी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.03 से, तो वो आपकी जो भी एडिशन होगा वो हो जाएगा। लेकिन सपोज एक अलग सिनेरियो है, मसलन आपसे कहा जाता है गिव ऑल मैनेजर्स अ 5% पे इंक्रीज। अब थोड़ी सी जो है रिस्ट्रिक्शन आ गई है, इट मीन्स कि स्टाफ के सारी रोज को अपडेट नहीं करना, सबकी पे इंक्रीज नहीं करनी, सिर्फ जो मैनेजर्स हैं उनको 5% इंक्रीज देना है। तो अब हमें पहली बात है कि इंक्रीज तो आएगा लेकिन वेयर का क्लॉज भी आएगा। तो इसकी क्यूरी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपडेट स्टाफ, वही अपडेट की मतलब कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम, सेट वही कमांड सेट जिन एट्रीब्यूट को आपने मॉडिफाई करना है, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05। आप देखें 5% था तो 0.05 बनता है, तो 1 + 0.05। अब वेयर का क्लॉज आ गया और वेयर के क्लॉज में आपने कहा वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर। तो दिस इज हाउ बेसिकली आपने मैनेजर्स की सिर्फ जो है सैलरी इंक्रीज कर दी है 5% से। तो दिस इज हाउ अपडेट वर्क्स। इसी तरह मसलन आप कोई जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या मल्टीपल कॉलम्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको कहा जाता है कि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो आप कर सकते हैं। मसलन सपोज यू आर आस्क्ड कि जी प्रमोट डेविड फोर्ड जिसका स्टाफ नंबर SG14 है टू मैनेजर, एक तो उसकी पोजीशन चेंज कर दो प्लस उसकी सैलरी जो है वो 18,000 पाउंड्स कर दो। तो द क्यूरी इज़ वेरी सिंपल, अपडेट स्टाफ, set position is equal to manager, comma salary equals to 18,000 और where staff number is equal to SG14। या आप ये भी कर सकते थे where first name equals to David and last name equals to Ford, लेकिन there could be a possibility कि डेविड फोर्ड नाम के 2 लोग हों तो फिर उन दोनों के हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि हम स्टाफ नंबर पे कर लें, क्योंकि हम स्पेसिफिकली हमें पता है जी हमने सिर्फ उसकी जो है प्रमोशन की है, हर किसी डेविड फोर्ड की नहीं की, तो मतलब देयरफॉर वी यूज्ड स्टाफ नंबर। तो दिस इज हाउ बेसिकली अपडेट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रोज इन द टेबल। जो फाइनल हमारी जो स्टेटमेंट है वो है डिलीट की स्टेटमेंट, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट सर्टेन रोज, मतलब देयर आर सिचुएशंस कि जी वी नीड टू डिलीट पर्टिकुलर रोज फ्रॉम द टेबल एंड इट इज आल्सो अगेन वेरी सिंपल। जो इसका फॉर्मेट है डिलीट का सिंटैक्स जो है आप देख सकते हैं, डिलीट का कीवर्ड है फ्रॉम द टेबल नेम और डिलीट के बाद फ्रॉम का कीवर्ड है किस टेबल में से डिलीट करना है, और वेयर का ऑप्शनल जो है क्लॉज आपके लिए है। अब अगेन आप अगर डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम दे देते हैं तो इट मींस यू आर आस्किंग टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम दैट टेबल, लेकिन अगर आप वेयर देंगे तो सिर्फ वो वाली रोज डिलीट होंगी जो उस वेयर को सेटिस्फाई करेंगी, अदरवाइज बाकी रोज डिलीट नहीं होंगी। तो मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दीज कमांड्स, क्योंकि जी इससे फिर ये होगा कि अगर आपने डिलीट कर दी एक दफ़ा तो फिर उसको आपकी रो वो वापस नहीं आएगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इस हवाले से केयरफुल होना है। तो टेबल नेम कुड बी अ बेस रिलेशन और एन अपडेटेबल व्यू, आपका उन दोनों पे ये डिलीट की कमांड जो है वो अप्लाई की जा सकती है। सर्च कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी ये ऑप्शनल है, अगर नहीं आप वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करते तो इट मींस यू आर आस्किंग टू डिलीट ऑल द रोज एंड कीप इन माइंड कि जी जो डिलीट है दिस ओनली डिलीट्स द रोज फ्रॉम द टेबल, डज नॉट एक्चुअली डिलीट द डाटा डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ दैट टेबल। वो जो हमने टेबल की डेफिनेशन दी हुई होगी वो टेबल नहीं डिलीट होगा, उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डिलीट होगा। तो मतलब एक चीज़ आपको बड़ी ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने टेबल को डिलीट करना है तो वो हम आगे DDL में पढ़ेंगे कि हम ड्रॉप टेबल की कमांड यूज़ करते हैं और उससे टेबल की डेफिनेशन मतलब वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेसिकली हम ड्रॉप टेबल के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे।
एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. सपोज delete all viewings that relate to property PG4. You are asked to delete all the viewing details of the property PG4. So you used delete from. ये आपके keywords हैं. From के बाद आपका वो टेबल आएगा जिसमें से आपने डिलीट करना है, तो इट्स व्यूइंग. और आपकी वेयर कंडीशन के अंदर आपने कहा जी सिर्फ वो वाली रोज डिलीट करो जिनकी प्रॉपर्टी नंबर PG4 है. तो आपने PG4 के जो जितने भी रिकॉर्ड्स थे या रोज थी वो सारी की सारी आपने डिलीट कर दी. सपोज अगर आप तमाम रोज जो है वो व्यूइंग के डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन से जी के डिलीट फ्रॉम व्यूइंग. तो डिलीट फ्रॉम व्यूइंग क्या करेगा, वो तमाम रिकॉर्ड्स आपके डिलीट कर देगा. चूंकि आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आपने कहा जी डिलीट फ्रॉम व्यूइंग, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो इट मीन्स कि यू आर आस्किंग टू डिलीट all the records or rows from the viewing table. That's it ji. This is our chapter number 5 and it is basically again ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. ये हमारा चैप्टर था SQL डाटा मैनिपुलेशन या DML जो है. बेसिकली हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव और बड़ी डिटेल में जो है इसको स्टडी किया. आई होप कि मतलब मैंने जैसे कहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, चूँकि अब आपने काम करना शुरू कर दिया है तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू कि आप इन कमांड्स को अप्लाई करके देखें. तो फ़िलहाल तो चूँकि हम जैसे मैंने कहा था कि हम सीक्वेंस बुक का ही फॉलो कर रहे हैं, तो चूँकि ये चैप्टर्स इसी तरह हैं, लेकिन अगले हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट DDL कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं डेटाबेस के अंदर, चाहे वो टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, यूज़र्स हैं, उनको हम कैसे जो है वो क्रिएट करते हैं. और हम देखेंगे कि हम उनको थ्रू मेन्यू ड्रिवन ऑप्शंस के थ्रू भी हम उनको कर सकते हैं और कमांड्स के थ्रू भी, लेकिन हम उन दोनों ऑप्शंस को बड़ी डिटेल में देखेंगे. तो आज अगर हम देखें तो आज हमने मल्टी टेबल क्यूरीज को कंटिन्यू किया पिछले लेक्चर में से ही. उसके बाद हमने आउटर जॉइन को देखा कि जी हाउ दे आर हेल्पफुल इन रिट्रीविंग और रिटेनिंग दोज रोज दैट आर अनमैच्ड इन अ जॉइन. और हमने डिफरेंट किस्म के जॉइंस को देखा, लेफ्ट, राइट और फुल. उसके बाद हमने एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट को देखा कि SQL कमांड के अंदर उसका क्या, सिलेक्ट के अंदर उनका क्या रोल है. उसके बाद हमने यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट या माइनस, डिफरेंस इन ऑपरेशंस को जो है वो डिस्कस किया. और फाइनली हमने जो डेटाबेस के अपडेट्स हैं जिसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट थी, जो कि that are quite simple as compared to select statement, उनको हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा. तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह हम यहाँ आज ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे. अस्सलाम वालेकुम.